Welcome, everyone. Welcome to today's open discussion on the fear of being left alone. And as some of you have joined us for the first time, so how these open conversations, open discussions go is that we keep it two-way conversations. We communicate to each other. It's an open call for everybody to talk. And it's not like we are going to deliver anything to you. So we will keep it conversational and we will see how the conversation flows in this particular topic. So, as today's topic is the fear of being left alone. So, what about this fear? Why are we talking about this fear? And is it as common as we think? Hmm? So, the first thing that we need to understand about ourselves as humans is that love, connection, belonging is one of our core fundamental needs. Hmm? We all want to be loved. We all want to give love to people, not just receive it. And we want to feel that kind of connection. We want to feel that we belong. So these are some, basic things which all human beings want. Even though you may hear, some people saying that, oh, I don't want anybody in my life. I'm so happy alone. People, create problems in life. So of course, not a lot of people, but you will still find somebody, in a circle talking like that I'm more happier alone. But the way we all are connected, not just psychologically, not just physically, not just emotionally, but even spiritually, energetically, we all somehow understand the fact that we are all connected. And there's no way literally for us to go out of this equation and say that, oh, connection and love is not something that I desire. Hmm? So that being a fundamental need. Whenever in the fabric of this love and connection, which we all deserve, which we all desire, which we all already are a part of, this fabric is torn. There is some kind of disharmony. There's some kind of, um, what should I say, break or, a dent which comes into that fabric, which makes us believe that this love and connection is something that we cannot have. I cannot have it. Or maybe there's nobody in the outside world who can offer me this. Or this is not possible. Or this cannot happen. Or maybe it can happen for other people, not for me. And so on and so forth. All of these dents, when they come, it creates a fear in us, which we can call the fear of being left alone. And this happens at various degrees. So there's no way where we can just, say that, my fear of being left alone would be the same as your fear of being left alone because it could be of different types, different intensities, could be coming out from different reasons. Maybe somebody has gone through a certain kind of trauma where they were left alone as a child. They were like literally physically left alone as a child. Or maybe they were given up by their parents. Or maybe they have seen death where they have had nobody to handle the situation with. Or maybe such a traumatic situation where they were left alone. There was nobody who came for help or could not come for help. Um, or maybe, kind of childhood trauma that we see where we face abandonment, where we see that whenever we need that love and connection with people, it's usually not met. That need of love and connection as a child is not met. Hmm? And when such things happen in our environment, maybe through childhood, maybe through different experiences in our different external situations, we start developing this fear of being left alone. Hmm. But when we have this fear of being left alone, what happens? What happens actually is that we feel that we are not worthy enough of having this love and connection in life. Maybe this is not going to work out for me, or people are not good enough. Whatever belief system we may carry around these things. Now we start projecting the same thing in the outside world. Now there's kind of a split that has happened in this picture, kind of a dissection which has happened in this picture, where there is one core part of you, one natural
instinctive part of you which wants it, but there is another part of you which is fearful that, you know, if you get it, it may go away, or you cannot lose people. So you need to figure out all the things in the world. You need to control all the situations in the world, that, you know, by becoming needy, by becoming clingy, by becoming controlling, by becoming dominating in relationships, by manipulating people, people pleasing people, all kinds of manipulative techniques so that people don't leave. So there is this innate fear that I have to make sure that I'm never alone. So that even leads to us being in relationships which actually are not good for us, just because we don't want to be left alone. Hmm? Another scenario which comes up in our life is that we continue to push people away. We continue to project these things in our life. So even if, let's suppose, we have become clingy and needy, and we have become emotionally and mentally manipulative to people, we please them, or we play games, or we somehow, make them guilty and try to keep them in relationship, it's still going to make us feel resentful and fearful. So our state is the state of fear. And let's suppose we are in the other scenario where we keep pushing people away because someday they would leave. We are anyway creating a reality where we don't have people in our life. Moreover, uh, you know, kind of it's kind of a self-fulfilling prophecy. It's like creating your whatever things are happening inside you in your outside reality, that there are no people in your life. So regardless of these situations, regardless of which scenario we fall into, we um, actually inside have the same fear, which continues to go on and on and on, and it continues to get projected in our relationship. So whether we are in a relationship, um, we still feel resentful and we still have this fear, and somehow the relationships are going to give that thing back to us. And when we feel again that we are not being loved by people because we are not giving them space to breathe, so when they start giving it back to us, it again reinforces the same thing that, see, I knew this person was going to leave me. I knew that nobody is going to stay. So it's kind of a loop that we get into where we continue to feel this way, and we continue to project it in the outside world, creating the same scenarios over and over and over again. Um, thus again reinforcing our belief that we are alone, and we are not going to have healthy relationships, or we cannot keep these healthy relationships. So this is how basically this fear and this scenario plays out in our lives. So a little bit of brief. There could be various extremes to this as well, where people develop different kinds of phobias, where they're just not able to be alone. So we are keeping the edge cases aside. We are talking about the normal relationship challenges, in the form of challenges when we encounter this fear, and how it looks like. Hmm? So this is a little bit of brief from my side. I would like to now know from you guys, have you experienced this in your past? Because personally, if I talk about myself, I really, really have been into relationships, or I have held on to people who were not healthy for me, just because I was scared that, oh, I might be alone. Or maybe I might not find anybody, or I'll end up alone in these places. And in fact, it's so weird. It's so, um, you know, in different ways could be wired in different people. So I was having this one fear regarding success in life. So how it got interconnected to this fear of being left alone was that I was feeling that all my friends and all the people around me are successful. And if I don't catch up in the same pace with them, if I don't catch up and run in the same, the same kind of velocity I have to maintain, otherwise I'll be left behind. And when I explored it deeper, even this success thing which I was struggling through, at the deeper root of it, there was fear of being left alone. Because somewhere I felt that, if I'm not able to get to the goal and chase the goal on time,
my friends will not appreciate what I have. So I had completely missed that point that all of my friends actually love me for what I am, not what I achieve in my life, right? So that is something which I have personally struggled, and I can give you guys like tons of examples related to this, like similar examples at how it played out in my life. So that those were just a few. Now over to you guys. That have you experienced something like this in your life? Are you experiencing something like this in your life, and how is it impacting you? So anybody who wishes to speak, you can raise your hand and we'll take it forward. Yes, Prerna. Hi everybody. Am I audible, Anamika? Yes. Okay. Um, so what used to happen with me was at workplace. So especially when you're new or you're joining the team new और कहीं पे क्लाइंट्स प्लेस में गए हैं तो लंच टाइम पे एक्चुअली ज्यादा फील होता था बिकॉज डीप विद इन एज यू सेड देयर इज अ नीड कि सबके साथ घुल मिल जाए एंड यू जस्ट वांट टू बिलोंग एंड देयर शुड नॉट बी एनी बैरियर्स ऑफ कोर्स अर्ली ऑन जब आप एक टीम में जाते हो तो एक फेयर एक्सपेक्टेशन आपको रखना ही है कि इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम टू नो ईच अदर एंड देन अंडरस्टैंड ईच अदर तो वो एक फेमिलियरिटी बिल्ड होने में टाइम लगता है वो सब तो है ही but still I would feel that I am with everybody but I don't really belong here. So I always felt like that even though ऐसा नहीं था कि they were not appreciating or something but वो लग रहा था कि I'm not belonging वो तो लग रहा था. But there was one specific team that I was a part of कि जब भी मैं उनको पूछती थी कि लंच करे क्या लंच के लिए जाए क्या एंड एवरी डे दे वुड जिस दिन मुझे भूख लगती है जल्दी उस दिन वो बोलेंगे नहीं आज तो उस दिन पांचों के पांचों को भूखने लगते हो उस दिन पांचों के पांचों दे वांट टू ईट लेट एंड जिस दिन मैं सोचती हूँ कि ठीक है शायद दे वांट टू हैव लेट उस दिन वो बिना बताए जाके लंच दे स्टार्ट ईटिंग आई वुड नेवर अंडरस्टैंड कि what is why are they doing this and तो मैं फिर सोचने लगी कि ठीक है I'll do one thing मैं कल से I'll just go and start having my lunch alone तो देन दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि आज कैसे तो मैंने सोचा नहीं मुझे भूख लगी तो आई जस्ट वेंट एंड आई डिसाइडेड टू हैव माय लंच फिर एक दिन क्या हुआ दे केम एंड दे टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू हैव लंच विद अस टुडे फिर मुझे लगा पता नहीं आज क्यों मेरे ऊपर इतना प्यार आ रहा है ठीक है अब वो बोल रहे तो आई वेंट विद देम फॉर लंच एंड देन दे रिवील टू मी कि एक्चुअली किसी अभी कॉलीग का बर्थडे सेलिब्रेट करना है दे डोंट हैव एनफ कैश सो कैन यू प्लीज पे इन द होल थिंग विल पे यू बैक लेटर तो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं इतना बड़ा कुछ कर रही हूँ दे विल बी सो थैंकफुल टू मी फॉर दिस तो मुझे ये करना ही करना है ऑफ कोर्स दे पेड मी फॉर इट लेटर तो आई डिड इट उसके बाद आई नोटिस्ड कि then they would come to me only when they actually needed something क्योंकि उनको अभी पता चल चुका था कि this is how it is कि okay we can just go to Prerna whenever we need something and then she will bail us out no matter what the situation is and somebody then asked me also कि they don't eat with you every day या हर बार they don't ask you तो ऐसा क्यों होता है why when they come to you why do you give in like so easily तो मैंने बोला कि because I fear being alone I don't want to be left out and all that and तो उसने बोला कि ठीक है okay but although I was projecting it all my life कि I fear being alone the truth was when I actually started my healing journey something very interesting I found out was that in those moments in which I was telling I fear being alone in those very moments actually I was already alone मतलब उनके साथ रह के भी तो आई वॉज ऑलरेडी अलोन ना इट वॉज आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई वॉज ट्राइंग टू डू कि उनके साथ रहने से थोड़ा सा तो एक सूदिंग रहेगा या फिर अच्छा फील होगा बट एक्चुअली इन दोस मोमेंट्स इन विच आई वॉज टेलिंग फियर है आई वॉज ऑलरेडी अलोन तो मेरे को पहले वो चीज ये करना था बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फिर कहीं ना कहीं मैंने टुक मी बैक टू माई चाइल्डहुड while actually uncovering so many layers I could actually relate that why it started in me because in childhood I had this memory जहाँ पे पापा हमेशा हमको बोलते थे कि वीकेंड we will take you out जब वीकेंड आता था तो कुछ तो हो जाता था कि he would become very stressed and then he would shout at us and very grudgingly take us out तो कभी कभी he would leave me behind
and come and pick me up only after half an hour. तो मैं घर पे बैठ बैठ के रोती थी कि they left me behind and they didn't take me, and then he would come after half an hour and take me back to whichever restaurant or ice cream parlor or park or wherever that they have gone. तो I would feel so grateful कि मेरे को अभी इन्होंने इंक्लूड किया है, कि मैं चुपचाप बैठ के वो आइसक्रीम खाती थी या खाना खाती थी कि अरे इन्होंने मेरे को कम से कम शामिल कर लिया, है ना. तो that was always, I had held on to that subconsciously so strongly कि मुझे हमेशा वो फील होने लगा कि ओके मैं बिलोंग ही नहीं करती हूँ यहाँ पे, एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग अलोन. तो वो एक मेमोरी हर जगह पे इतना इंटेंसिफाई हो गया, एंड स्पेशली इट ऑलवेज हैपेंड इन लंच प्लेसेस, कि जहाँ पे लंच टाइम है या जहाँ पे सेलिब्रेशन है, सबको साथ में बैठ के खाना है, वहां पे ये इंसिडेंट अलग अलग तरीके में प्ले आउट होने लग गया. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि फूड के साथ ही ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज दिस कनेक्शन सो मच विद फूड. बट उसके बाद काफी ज्यादा सोचने के बाद आई कुड अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग अराउंड फूड और अराउंड सेलिब्रेशन. तो देन इट रियली टुक मी अ लॉट ऑफ courage, and it really took me a lot of healing work ki okay I have to accept ki sometimes it's okay to be in this solitude. एंड उसके बाद ये जो लोग मुझे चिपक गए थे ना कि जब भी इनको कुछ चाहिए, बाद में मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं अब इनसे पीछा छुड़ाऊं कैसे. मैंने ही उनको बुरी आदत लगवा दी कि जब भी आपको कुछ चाहिए होगा आप आ सकते हो, मैं हेल्प करूंगी. बाद में मैं इतनी परेशान हो गई कि हाउ डू आई लीव देम. तो पीपल प्लीजिंग भी इन डेवलप हो गया था इन द कोर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो देन एक्चुअली फियर ऑफ बीइंग अलोन के साथ पीपल प्लीजिंग, एवरीथिंग बिकेम सो कॉम्प्लेक्स एक के साथ एक. तो वो तोड़ने के लिए एक्चुअली फिर काफी ज्यादा मेहनत लगी. सो दिस वाज लाइक माय एक्सपीरियंस. Yeah, I totally get it, Prerna, and I guess the office scenario that you were sharing, I have faced something very similar in office. So I saw over a period of time. So if I could, observe my life in different chunks of time frames, so the way I was behaving till the age, maybe till fourth, fifth standard, is completely different from how I was behaving from sixth to eighth standard, and then ninth and tenth, and then 11th and 12th. And something suddenly drastically changed after that. And then I went to college, it changed after that. And the same thing would play over in different places. So, like when I went to office, and I would see that, I was not feeling that belonging with people. And, even though I could give many other good, seemingly good reason to leave that workplace, but actually, the major reason to leave that workplace, I would say 60 to 70% of it was toxic environment. So even though I had a really good position, I had an amazing, like the most amazing boss I could get in this world. I feel so grateful that I worked over there and all that. But the environment was so toxic. And then it was a struggle every single day trying to fit into that environment, right? So I would, pretend to be this bubbly, cheery person with everybody, which I'm actually not. And the same thing happened in the college. So this entire 2, 3 years of phase while I was in college, where I was meeting a lot of people, because somebody had told me that, you have to be an extrovert at that point of time. I had this thing instilled in my head that you have to be an extrovert to gel with people, right? And I was not like basically lying or masking everything and all that. But I realized that it took me a lot of energy to be that person, because I can be an extrovert sometimes and I can happily be that when I'm in a comfortable situation. But 90% of the cases, I am an introvert and I'm happy being that now. But then actually it was like about being a people pleaser and wanting to be, be in the groups and gel with people. But actually the people I was trying to gel with, they were really not people to actually, be with, because all they would talk about is gossip and bitching about other people, and this is this and this is that, and useless, literally useless stuff. So
I mean, okay, fine if they want to do that, but that's not something which I want to do. But I trying to like make that happen every single day, big struggle. And now I feel that I wish the things that I got introduced to in last 5 6 years and the work I did, I wish I had a little bit, pinch of knowledge at that point of time. And now if I imagine being in that situation, because I have been into such situations currently as well, and the way I now deal with things is maybe just completely opposite, right? And the same things which, used to make me feel unwanted and not belong in places. So, I went to this temple which my mom goes to, and there were a lot of people every time. And she wants me to connect with people the same way she does. And she is a big extrovert. Everybody likes her, everybody loves her. She would know everybody in the temple. Hmm? And I'm just the opposite. So she would want me to do the same thing, and I cannot do the same thing. So when I go there, everybody has an expectation, or maybe some people even, think that introverts are maybe arrogant or they have an attitude, because it's really hard for extroverts to actually, you know, come in their shoes and understand them. So getting those stares and all that. But the same thing did not make me uncomfortable at all, because I know that it's not my job to make any of those people understand all of those things, right? So, when you were talking, there was a quote which was coming to my mind. So it's not actually related to interpersonal relationships. It's related to romantic relationships, but it applies here as well. That relationships won't heal you, and being single won't kill you. So, आप जब बात कर रहे थे तो मुझे एग्जैक्टली यही सेंटेंस याद आ रहा था कि व्हेन वी आर इन दैट स्टेट ऑफ फियर, जब हम उस स्पेस में होते हैं ना, इनफैक्ट कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि ऐसा फील होता है ना कि द बॉडी वुड बर्स्ट, the breathing would change, we would start, you know perspirating. इनफैक्ट फिजिकल बॉडी के लेवल पे, पैनिक अटैक के लेवल पे आपको फीलिंग्स आने लग जाती हैं when you are living with that kind of fear and situations when they trigger you. So I'm not just talking about the mind level, thought level, that what kind of negative thoughts we have and all that, or what kind of emotions we are getting, but those things, those feelings start getting translated into the body, and it's like too overwhelming, too overwhelming. And um, उस स्टेट में जब हम होते हैं, तो ये चीज हमें जब समझ में आती है कि यू नो relationships won't heal you, and being single won't kill you, then we can do something about these things. So it's about coming back, taking a pause, but then again, the same work that we talked about, Prerna, going on a healing journey and understanding all of these things, going deeper, seeing where it is actually coming from. Like your anchoring was food, which is a very profound and beautiful thing. Likewise, we all have been anchored to different things, different kinds of um, feelings and different kinds of emotions, which have gotten way deeper in the core, subconscious part of us. And even though we may telling ourselves, so sometimes when we ask these questions to people, and they would say that, oh, I'm like this, I can do this, I can do this, but then the situation hits and we are having a panic attack at that point of time. So it doesn't work until we go to the root level and you know do something about those things. So thank you so much for sharing that, Prerna. Anybody else would like to say anything, ask anything? Yes, Pooja. Hello everyone. Actually, Prerna ने जैसे situation बताई है, same happened with me. I was never included in my office. But when they came to me for the boss's birthday's contribution, although I was not present that day, then I denied कि मैं थी ही नहीं तो मैं किस बात का contribution दूँ.
And while planning, मैं सामने ही बैठी थी, and I was not informed also. So I never tried to fit in, and that costed me कि बॉस के भी ध्यान में आ गया, एंड कभी कभी जब कुछ रोल असाइन करने की बात आती थी तो वो मुझे बोलते भी थे, मैम आपकी किसी से जमती क्यों नहीं है? तो मैंने बोला, सर मैंने क्या किया? मैं जितना काम है उतनी बात करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा बात ही नहीं करती हूँ। और मैंने बोला वहां पे काम की बातों में भी मुझे कोऑपरेशन आपके स्टाफ से नहीं मिला है। तो कुछ हद तक वो समझ पाए इस बात को, बट ज्यादा लॉन्ग टर्म ये नहीं चला। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू दिस सिचुएशन। And is this something which is still happening or this happened in the past? दिस इज रिसेंटली हैपेंड, मतलब ये मतलब कुछ महीनों, मतलब लाइक जैसे ही मैंने ज्वाइन किया एंड आफ्टरवर्ड्स मेरी कलीग आई, शी वॉज लिटिल मैनिपुलेटिव, एंड जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स यूजुअल होती है वो उस टाइप की ही थी। मतलब जो बात इतनी सी है उसको इतना बड़ा करके हर चीज बॉस को जाके बताना, तो नेचुरली लोग ऐसे लोग पसंद आते हैं जो बात है नहीं वो बात लगाकर बताने वाले। एंड आई वॉज नॉट, मतलब मुझे गलत किसी का दिखा भी, सो जब तक जरूरी नहीं है मैं जाकर बोलती नहीं थी, मैं चीजें अपनी हद तक टैकल करती रहती थी। उसने भी मेरे साथ जो बात गलत करी, मैंने कभी जाकर पॉइंट आउट नहीं की ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने अपना स्टैंड नहीं लिया वहां पे। सो इफ आई वुड हैव टेक, मतलब जब भी अगर मैं उसको प्रोजेक्ट कर देती थी कि देखिए सर ये मेरे साथ ऐसे कर रही है, तो प्रोबेबली वो भी कुछ ऑब्जर्वेशन में रहती थी कि ये क्या ऐसा क्या करती है कि लाइक आई एम नॉट एबल टू वर्क इन दैट एनवायरमेंट। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं यही पूछने वाली थी कि हाउ डिड पीपल गॉट दिस आइडिया फ्रॉम योर साइड दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू? Yeah, because I didn't took my stand when it was required. मतलब इतना फियर था मेरे अंदर कि अगर मतलब क्या बोलते हैं कि जाकर नहीं बोलना, अगर मैं बोल दूंगी तो वो मुझे ही गलत समझेंगे या मुझे ही निकाल देंगे, ये एक फियर था। जबकि मैं एक बार बोलकर तो देख सकती थी, और जब जब वो सिचुएशन तब के तब होती है तभी बोलने में उसका कोई मतलब है। बाद में सब चीज होने के बाद वो कुछ महीनों के बाद वो चीजों का मतलब नहीं रहता है। दैट इज माई बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस। राइट। एंड आप अगर उस टाइम पे बता देते तो वो आपको ऐसा क्यों लगा कि वो आपके ऊपर ही गुस्सा करते, आपको ही चिल्लाते? आई मीन ऐसा उन्होंने किया था कभी? या मुझे थोड़ी जो वहां पे मतलब मेरी बॉस की बेटी भी बैठती थी, तो एंड शी यूज्ड टू लुक आफ्टर लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो मुझे काफी बायस्ड लगी उसकी तरफ। एंड जैसे बीइंग अ न्यू एम्प्लॉय, तो मुझे लगा इनिशियली मैं हर चीज की जाकर कंप्लेंट करूंगी तो I'll be seen as an immature and a complaining person. Rather than और being ये able to handle some things by myself. बट ये पर्टिकुलरली सिचुएशन किस चीज से रिलेटेड है, किस टाइप के काम से रिलेटेड है? जैसे मैं HR में थी वहां पर, एंड माय कलीग वाज एन एडमिशन काउंसलर देयर, हम सामने बैठते थे। एंड मतलब उसने क्या किया, यू वांट टू नो दैट? हाँ, आई जस्ट वांट अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि किस टाइप की या चीज में ये तो हुआ। लाइक पहले एक्चुअली प्रीवियसली जो लोग हैंडल करते थे वहां पे ये पोजीशन, तो कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं था कि कितने कितने इंक्वायरीज आए, कितने एडमिशंस हुए, या कितने लोग, मतलब ये साल में कितने रिक्रूटमेंट्स थे और नेक्स्ट ईयर का क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लोग, वॉट एवर, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड। एंड आई थॉट कि इसको थोड़ा सिस्टमैटिक करते हैं, तो वहां पे सिस्टम नहीं था आइदर ऑफ द टेबल्स पे। तो मैंने वहां पे जो भी इंचार्ज थे उनको बोला कि एक सिस्टम लगा दो करके। एंड मेरी कलीग का मेन टेबल था जहाँ पे वो एडमिशन काउंसलिंग लेती थी, मैं सामने वाले पे, तो मैंने बोला यहाँ लगा दो, तो जब सुबह के टाइम पे काउंसलिंग नहीं होती है, शी कैन डू हर वर्क एंड गेट बैक टू हर टेबल, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई डू द एंट्री।
तो उसको पहले उसी टाइम पे उसको कुछ ऐसे लगा कि मेरे टेबल पे होना चाहिए, मेरे पास ही होना चाहिए। उसने जाकर जिसने लगाया था उसको भी जाके बोला कि ये मेरे पास लगाओ। तो वो आए पूछने के लिए मैं कहाँ लगाऊं। मैंने बोला आप मैम से पूछ लो फिर। तो मतलब आई डेंट टुक दैट ब्लेम ऑन मी कि मैंने ऐसे ये किया। बट देन आफ्टरवर्ड्स कुछ टाइम के बाद मेरा टाइमिंग हाफ एन आवर आगे शिफ्ट हो गया। तो उसने वो हाफ एन आवर का एडवांटेज लेके ऑफिस बॉय को बोल के उसके ही टेबल पे लगवा लिया वो सिस्टम। तो तब के तब इफ आई वुड हैव टेकन दैट स्टैंड और मैं जाके बोलती मैम ये ऐसा ऐसा है, तो शायद ये इतनी बढ़ती नहीं बात। दूसरी बात, जब मुझे वहां पे पंचिंग मशीन है उसमें एंट्रीज के लिए वो काम दिया गया था, तो वो उसका सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम में और वो उसके टेबल पे। तो तभी भी दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी कि मैं वहां पे जाके बैठूं। और वहां पे फोन पे मैम बोल रही है मैम आपको जितना टाइम लगता है आप वो सिस्टम यूज करो और वो काम कंप्लीट कर दो। तो तभी भी मैंने उसको बोला मैम ने ये बोला है कि आप यहाँ पे बैठो, एक दो दिन मुझे काम करने दो। तभी भी वो इतना चिढ़ गई कि ऐसा किसने बोला, कितने दिन लगने वाले हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली द बर्थडे सेलिब्रेशन का डिस्कशन चल रहा था। तो उसका एक तो उसने बिना बोले सिस्टम लगवाया और उसका ही ग्रज पकड़कर जब मुझे काम करने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिली है तो उसका ग्रज पकड़कर मुझे बर्थडे का मैसेज ही कन्वे नहीं किया। तो ये होने के बाद जब कोई सिचुएशन में मैंने ये बात बताई भी, दोनों बॉस और उनकी बेटी के सामने मैंने बोला भी कि मैम ने ऐसे किया। सो दे टुक इट वेरी लाइटली कि मैम मैंने तो आपको उसी दिन बोला था, आप ये बात सॉर्ट आउट आपस में कर लो करके। तो देयर वाज नो एक्शन टेकन अगेंस्ट, मतलब उसका कुछ भी लॉस नहीं हुआ, उसमें उसका कोई इमेज भी नहीं खराब हुआ। अल्टीमेटली वो हर चीज का ब्लेम या वो सिर्फ मेरे ऊपर आया। हम्म। राइट। सो अभी तो ये सिचुएशन हो गई है ना? हम्म सो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन? मेरा लर्निंग सबसे बड़ा ये रहा है कि जिस दिन ऐसे हुआ तब के तब मैंने जाके बोल देना चाहिए था। सो दे वुड हैव बीन इन द लूप कि क्या चल रहा है। हाँ हाँ। कि अभी भाई उन्होंने नहीं, बिना वो तो बोले कर सिस्टम लेना दे। चाहिए था, नहीं वो हाँ तो हो गया। वो तो हाँ आपको कर लेना चाहिए था, आपने नहीं किया नाउ। राइट। वो गया। हम्म अभी व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ। हाँ, एंड व्हेन such similar situations come up? आई ट्राई टू, इफ सिमिलर सिचुएशंस कम अप, मैं अब ये कोशिश करूंगी कि मैं पहले से ही वेल इन्फॉर्म्ड रखूं अपने सीनियर्स को कि क्या चल रहा है, रादर देन मतलब अपने आप में ही ये चीज रखते हुए। बट ये आप कब तक करोगे? I mean, see, there would be hundreds of things happening, या right? So they don't have time to, actually look after कि आपका आपके कॉलीग्स के साथ क्या हुआ, कौन सी मशीन हम्म कहाँ लगी, किसने क्या किया। या छोटी छोटी बातों पर हर बार ध्यान नहीं दे सकता है कोई भी। एग्जैक्टली। हम्म, आप भी किसी को मैनेज करते होगे तो आप, जैसे कि अगर या मेरे अंडर पे दो लोग काम कर रहे हैं तो मैं, अगर उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ है देन आई वुड हैव एन एक्सपेक्टेशन कि यू आर एडल्ट्स एंड हम्म यू हैंडल दिस, या राइट? सो ये आप कब तक करोगे? ये तो आप बहुत ज्यादा, बहुत बार और बहुत दिन तक तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट्स द अदर सोल्यूशन, द मोर रियलिस्टिक सोल्यूशन? आई कैन फिगर इट आउट। हम्म हम्म। तो वो जिनके साथ भी आपका ये इशू हुआ था उनसे डायरेक्टली बात करने में क्या इशू है? हाँ, तो मैंने डायरेक्टली भी बात की है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कोई केओस क्रिएट होने के बाद ही मैंने उनकी कंप्लेंट की। मैंने उस दिन भी उनको बोला कि आपने पूछा नहीं मैम, आप एटलीस्ट पूछना चाहिए था ना। नहीं नहीं, सबको ही तो लगता है ऐसा वैसा। देखो, जो झूठ बोलता है या जो मैनिपुलेट करता है उसके पास 100 रीजन है, आप वो बंदे से जाकर क्लैरिफिकेशन कर नहीं सकते।
जो ऑथेंटिक ही नहीं है, आप क्या जाकर बोलोगे? हम्म अभी मुझे अगर पता है कि इस बंदे ने ही चोरी की है और मैं जाकर बोलूंगी कि तुमने ऐसे किया, तो वो मानने वाला थोड़ी है। वो उतना स्किलफुल है कि वो वहां पे मुझे ही घुमा दे और मुझे ही झूठा गिरा दे। But now the thing is कि you have to be in that office, you have to be in that place, and you have to deal with this person on a daily basis, या right? So she also needs to understand कि अभी ये कैसे बोलूं मैं, कि ये नहीं कर उसने सकते। रिलेशन कैसे कॉर्डियल रखना चाहिए। नहीं, उसमें रिलेशनशिप कैसे कॉर्डियल रखना चाहिए की बात नहीं है। लाइक you're टेलिंग कि somebody जो कि एक चोर है, राइट? सो नाउ यू नीड टू सेट अ बाउंड्री विद दैट पर्सन कि आपको ये बताना है सामने वाले को कि दिस इज नॉट हाउ यू कैन बिहेव विद मी, दिस इज नॉट या हाउ यू कैन ट्रीट मी, राइट? या तो वो अभी, क्योंकि अब सीनियर्स के बार बार जाके कंप्लेन तो कर नहीं सकती, बिकॉज हम स्कूल के बच्चे और वो टीचर्स तो है नहीं जो हम या उनसे कंप्लेन करें बार बार जाके। हाँ, अंटिल कुछ चीजें होती हैं डेफिनेटली इन दी वर्क प्लेस विच नीड्स टू बी एस्केलेटेड, या but not everything. The nitty-gritties cannot be escalated. They are something which we need to handle between us. क्यों? क्योंकि जब हम ये nitty-gritties को लेके बार बार जाने लग जाते हैं अपने सीनियर्स के seniors पास। के पास, that in itself creates a bad image. That in या itself hampers the entire position कि आप वो आगे जाके आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों को हैंडल करो और बड़ी टीम्स हैंडल करो, ज्यादा चीजें करो, right? And if you are not able to do this, then they would start losing trust on you. They would not feel that you are reliable, या right? So how can you set the boundary with her? I actually set the boundary by keeping the relation to the minimalistic, कि भाई जितना हमारा काम है ऑफिस की हद तक हम बात करेंगे। एक्स्ट्रा जो होता है ना, ये शॉपिंग कहाँ से करी या ये कहाँ से किया या बाहर जाना, एक कैजुअल गेट टुगेदर के लिए, वो मैंने सब अवॉइड कर दिया। Even I was asked several times, ये चीज आपने कहाँ से ली या ये which doctor you read, whatever was asked, I didn't give any impersonal answer to her. Okay, okay. But the thing is that that's not what setting boundaries is. I mean, what could have been the other way of setting the boundary? उसको कैसे पता चलेगा कि वो ऐसे नहीं बिहेव कर सकती है? Hmm. Hmm. We'll come to that. Maybe, from a very long time, Malini's hand is up. Malini, anything you wanted to say at that point of time? Yes, absolutely. Please. When a cohort gets together, it gets together for some reason. All the people on the call, some point in time, we all have faced these issues. So I won't say my childhood or my youth or my present is any different. I brought the change by working deeply on myself. मेरे साथ भी बचपन में ऐसा होता था कि इंक्लूजन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, जब छोटी सी थी, शायद 5th क्लास में रही होंगी, तो एक बार स्कूल पिकनिक पे जा रहे थे और क्लास में ना अलग अलग ग्रुप्स थे। तो उसमें से एक ग्रुप ने मुझे आके बोला, तू एक काम कर, तू ना सबके लिए पाव भाजी लेकर आना, हम सब कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। सो हाउ दे वर ब्रिंगिंग वर कि थोड़ा सा कोई चाउमीन ले आया, थोड़े से कोई पैटीज ले आए। मैं 30 बच्चों के लिए पाव भाजी लेके गई थी, so that nobody should be left out. That was one incident which I completely remember, that how badly I used to crave to be included. और
उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे सेम लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में मिलते गए, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो इन लॉज है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में बनता है, नेबरहुड से आप लोगों के साथ बात करना शुरू करते हो। तो जब ये चीज समझ में आने लगी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है कि मैं मुझे ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं, तो तब डीप इनर वर्क किया और आज की डेट में उस वॉइड को भरा कि नाउ आई एम हैप्पी इन माई ओन स्किन। when we are feeling that void is there inside you, जैसे आप समझते हैं ना कि जब समुद्र में वो साइक्लोन आता है, साइक्लोन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, भंवर आता है, तो वो सारी चीजें अपने साथ नीचे खींच के लेकर जाता है। तो आपके अंदर ऐसा कौन सा वॉइड है कि आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उस वॉइड को भरना बहुत जरूरी है। और जब मैंने उस वॉइड को भरा, अब ऐसा नहीं है कि आज की डेट में मुझे वो लोग नहीं मिलेंगे जो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपको एक सेंस रहेगी कि मुझे किसके लिए क्या करना है और कितना करना है और किसको क्लियरली ना बोलनी है। पहले जो ना बोलने में हिचक थी ना, वो आज की डेट में नहीं रही। तो ये फायदा हुआ मुझे जब मैंने अपने आप को समझा, उस इनर चाइल्ड को ग्रो किया और अपने आप को वो सारी चीजें दी जो कि मुझे दूसरों से एक्सपेक्टेड थी कि वो मुझे समझे, वो मुझे इंक्लूड करे। अगर कोई मुझे इंक्लूड नहीं कर रहा, इसका मतलब है समवेयर आई एम नॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ। So you got to actually work on the places you are excluding yourself completely. You are not honoring your own boundaries, or maybe you don't have any boundary over there. I hope this contributes something to the cohort. Thank you. Thank you so much for adding that, Nalini. Absolutely. Absolutely. So, yeah, coming to boundaries. Okay, before I speak about that, anybody else here, because we have had this conversation so many different times and so many of you here have particularly spoken about this topic. So you guys want to say something to Pooja on boundary setting? So you guys can take her example. Yes, Malini. To set a boundary, you got to be, very clear what is a yes and what is a no to you. And when it comes to that yes or no, the space of maybe is very limited. I won't say कि आप maybe में जाओ ही मत। कभी कभी होता है कि ठीक है, आप किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाकर कुछ कर सकते हो, आपकी इच्छा है करने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी विलिंगनेस को देख के करो। वहां पर आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर मत करो, या ये उसका जो बैकग्राउंड है वो ये लेके मत करो कि नहीं, मैंने आज इसके लिए ये किया है तो इसको ये समझेगा कि मैं कितनी महान हूँ। नहीं, मैं वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन है अंदर से करने का। और जहां पर आप अपने हाँ और ना को समझोगे, तो उसको अप्लाई करते हुए ना, फिर आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मेरी लिमिट्स क्या है। दूसरे को लिमिट समझाने से पहले अपने खुद के लिमिट समझिए। दैट इज व्हाट आई डिड, दैट इज हाउ आई मेंटेन्ड माय बाउंड्री। देयर वाज अ टाइम जब कोई भी मुझे कभी भी कॉल करता था और मैं उनसे घंटे घंटे 2-2 घंटे बातें कर रही हूँ। क्यों बातें कर रही हूँ? तो सो दैट दे फील बेटर। नाउ आई अंडरस्टैंड to whom I want to devote how much time, and if I really don't have time, come what may, whatsoever they are, I am free to say a no, and I am free to say I will get back to you, and if there is something important, you can tell me in 1 minute. And there is no shame, no guilt, no wrongness in that. You got to respect yourself, you got to honor yourself, you got to make that boundary, and you got to, adhere to it. That is what I would say. Beautiful. Thank you. Thank you so much, Malini. So a few pointers from what Malini shared, that the boundaries need to be very clearly, very specifically stated. They are your non-negotiables. And yes, there is a scope of a little bit of maybe
a little bit of maybe due to, a situation, a circumstance, or edge cases, leaving those aside, but it's a very clear yes and a very clear no. Hmm? And they are pretty much defined, explained clearly, and they are not set from the angle to disrespect the other people, because हमारा ये mindset होता है कि अगर हम ऐसे बोलेंगे, इस तरीके से बोलेंगे, तो सामने वाले की इंसल्ट हो जाएगी. बट मुझे दीपिका पादुकोणे का वो जो कौन सी मूवी है, बाजीराव मस्तानी का डायलॉग याद आ जाता है कि मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं अपना मान बता रही हूँ. And that is what boundary setting is about. That she went to the whole, place, and then she gave the ghungru, and then everybody says कि तुम सबका अपमान कर रहे हो, because that is the way, people who don't, respect our boundaries may even behave like that. And then you got to hold it up. Fourth important point, which Malini mentioned, that it's not just about setting the boundary, it's about staying there. So you stay there. You defend your boundary strongly. Stay there. इसका मतलब ये नहीं है कि हम rigid हो गए. So in your case, Pooja, why this is not boundary setting? कि इसमें पहली तो ये 4 conditions meet नहीं हो रही हैं. दूसरी चीज, this is not creating a boundary. This is creating a wall. What you're doing is you're creating a wall. You're distancing yourself from people. Boundary setting is actually the opposite. It's like opening up a space so that people can be authentic with you, vulnerable with you. And if they are not, you are fine, because it's their choice. Now it's not, अब आपने बॉल उनके पाले में डाल दी, right? Whether they wish to be that now, whatever way they behave is about them. So उसमें आपने अपने रंग, अपने फिल्टर्स, अपने कलर्स कुछ भी मिलाया नहीं है. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि maybe शायद there was a possibility that if you don't create walls, boundary settings are for non-negotiables. जो चीजें वो लोग आपके साथ नहीं कर सकते, बस. Apart from that, it's an open ground, right? So it's an open ground to, welcome people. ये सब थोड़ी बहुत चिट चैटिंग, गेटिंग टू नो ईच अदर, स्पीकिंग विद ईच अदर. हाँ, आपको नहीं पसंद है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट अगर इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, देन you can do that with people, right? That's the whole point, कि आप, ताकि लोग आपके साथ ज्यादा healthy space में रह सके. So it's not about pushing people away. It's not about closing the doors कि जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है. It's about being comfortable in your skin, that you are welcomed. But this is how, about some things, this is how I am, and this is how, I respect myself. Right. So that is what I was sensing from what you were saying. Lata, your hand is up. Anything you wish to add? Yeah, Namika. So on setting the boundaries, sometimes what if it is not in our hands? Suppose, give for example, is somewhere on the higher authority has to set boundaries between, their maybe reportees to align to their work, or maybe some kind of put some boundary who will be doing what, so that no one is hogging their work, or any kind of issues. So what if that kind of if we do not have that power of setting the boundary, if someone else is having that power, then how to go about it? नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं है. आई एम सो सॉरी. थोड़ा सा सिनेरियो मुझे. लेमन टर्म्स में सपोज 2 हाँ. बच्चे हैं, ठीक है, दोनों एक ही एज के, दे आर क्राइंग और फॉर समथिंग, और दोनों को एक ही चीज चाहिए, ठीक है. अब इसमें एक बच्चा बोलेगा कि ये मेरा है, दूसरा बोलेगा ये मेरा है. ओनली अडल्ट कैन हैंडल कि नहीं ये इसका है, ये इसका रहेगा, ये आपका नहीं है. आपको दिया था, वो टूट गया, ठीक है. तो यहाँ पे जो सेटिंग द बाउंड्री है, ये बच्चों के हाथ में है ही नहीं. मतलब इवन इफ वन सेज अदर वन इज नॉट डजंट वांट टू लिसन, कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे, डेलिबरेट भी है. और वो एड्रेस करने, अगर एक बंदा एड्रेस मतलब
एक बच्चा अगर एड्रेस करता भी है तो भी उसको मतलब विल बी इन अ बैड लाइट सम कि आर्ग्यू कर रहा है या बोल रहा है ऐसा, तो वो गुड बुक्स से लता, ये जो आप एग्जाम्पल ले रहे हो, ये सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। जब हम बाउंड्री सेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अपने नॉन नेगोशिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अबाउट डिसिप्लिनिंग समवन और ऑल दैट। सो ये अलग है, वो बाउंड्री सेटिंग नहीं है, वो तो एजुकेटिंग समबडी एंड ऑल दैट की वो अलग एरिया है जो आप एग्जांपल लेके बात कर रहे हो। तो बाउंड्री सेटिंग की जब बात की जाती है तो बाउंड्री सेटिंग में 2 स्टेप्स हैं। सो फॉर एवरीवन, I think Pooja was also talking. So I want to just take few minutes and re-establish this कि हम setting healthy boundaries phrase use करते हैं day to day life में, लेकिन setting healthy boundaries जो है वो एक चीज नहीं है. It has 2 steps in it. Setting of healthy boundary is only a decision, only a communication point. तो जब आपका कुछ नॉन नेगोशिएबल है, समथिंग विच यू वैल्यू, which cannot be compromised, and you see that is getting compromised by somebody. आपको ऑनेस्टी पसंद है, and you value that honesty and ethics, but आपका मैनेजर या कोई और आपको फोर्स कर रहा है to be unethical, to be dishonest about something. ये सिनेरियो आता है सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज में कि दिस इज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स और व्हाटएवर. तो पहला स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग. सो कम्युनिकेशन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है. कम्युनिकेशन करना तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, ऑल्दो फॉर मेनी पीपल दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग. बट मैं किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं. मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू में कम्युनिकेशन इज द सिंपलेस्ट पार्ट, ऑल्दो फॉर सम पीपल इट कुड बी द हार्डेस्ट स्टेप. आई एक्नॉलेज दैट. लेकिन उसका जो सेकेंड स्टेप है वो हार्ड है, और वो सेकेंड स्टेप है डिफेंडिंग द बाउंड्री. आपने एक बार कम्युनिकेट कर दिया तो ये ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार बता दिया तो ये हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है. हम सेटिंग हेल्दी बाउंड्री को एक स्टेप का प्रोसेस समझ के चलते कि बता तो दिया, कम्युनिकेट तो कर दिया, तो ये समझ क्यों नहीं रहे. नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझेगा. आई हैव टेकन दिस एग्जांपल मेनी टाइम्स इन द पास्ट एज वेल कि अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, तो विजुअलाइज कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री है. वो वेल एस्टेब्लिश्ड है 1947 से. आज भी वहां पे दोनों तरफ आर्मीज खड़ी होती हैं, आज भी डिफेंडिंग चल रही है. तो अगर कम्युनिकेशन एनफ होता ना, तो कम्युनिकेशन तो 1947 में ही हो गया था. So setting healthy boundaries is never about communication. That is why I am saying that the first step is the easiest part. Communicating is the easiest part. दिक्कत आती है डिफेंडिंग में, क्योंकि डिफेंड करने में आपके सारे वुंड्स, स्कार्स बाहर आएंगे. योर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज, और your tendency that people take you for granted and all that, बहुत सारी आपकी टेंडेंसीज बाहर आएंगी क्योंकि आपसे डिपेंड नहीं हो पाएगा. मैं आपसे मतलब आई एम नॉट रिफरिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन. सो सबसे बड़ी दिक्कत आती है डिफेंडिंग में. वो हार्डेस्ट स्टेप है और वो एक हिडन स्टेप है, क्योंकि हम सब लोग से बात करते हैं सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज की, कोई भी बात नहीं करता है डिफेंडिंग दी हेल्दी बाउंड्री. वही सबसे इंपॉर्टेंट, वही सबसे डिफिकल्ट स्टेप है. और वो क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो मिस हो जाता है. उसके बारे में कुछ किया ही नहीं. तो हम सिर्फ सोचते कि बस बता दिया, किसी को कम्युनिकेट कर दिया, इससे बात बन जानी चाहिए. कम्युनिकेशन से बात नहीं बनती है. हर रोज डिफेंड करना पड़ता है. तब तक डिफेंड करना पड़ता है जब तक सामने वाले को ये चीज समझ ना आ जाए. तो यू हैव टू स्टैंड फर्म एंड असर्टिव अबाउट इट. और ये करने के लिए ताकत लगती. हम जब आर्मी पर्सनल्स को सरहद पे भेजते हैं तो उनकी बहुत ट्रेनिंग करके भेजते हैं. ऐसा नहीं किसी को भी रिक्रूट करके वहां पे भेज दिया.
उनकी मेंटल एजिलिटी, इमोशनल एजिलिटी, फिजिकल एजिलिटी, इन सारी चीजों पे काम होता है, उनको डिफेंड करने के केपेबल बनाया जाता है, फिर उनको वहां पे भेजा जाता है कि अब यू गो एंड डिफेंड इट, क्योंकि उनको पता है कि अटैक आएगा, रिटेलिएशन होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो वो वहां पे बैठ के कंप्लेन नहीं करते, वहां पे बैठ के वेंटिंग नहीं करते कि ये पाकिस्तान फिर हम पे अटैक कर रहा है, ये तो फिर कर रहा है, इनको तो एक बार तो बता दिया है, 10 साल से बता दिया, 20 साल से बता दिया कि यहाँ पे बाउंड्री है, फिर भी ये लोग हम पे अटैक किए जा रहे हैं, ऑल दैट। वो लोग नहीं करते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ये तो होने ही वाला है। तो ये एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ता है सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज में, कि आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन आपने बाउंड्री सेट की उस दिन रिटेलिएशन आएगा ही आएगा। जिन लोगों का काम अभी तक बन रहा था उनका काम बंद हो गया है होना, और आपको रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। अगर आपको ये लगता है कि बता देने के बाद इनको खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और मेरी लाइफ इजी हो जाती, तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन होगा। ये होता नहीं है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आई विश कि इट वुड हैव वर्क लाइक दैट, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो उसी के लिए हमको डिफेंड करने की कैपेबिलिटी पहले अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो हमको जो सेकंड स्टेप में जो स्किल्स लगेंगे उनको हमें पहले करना है। तो डू नॉट स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू पीपल अबाउट योर हेल्दी बॉडीज। फर्स्ट चेक कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप डिफेंड कर पाओगे, आपको रेजिस्टेंस आएगी, आपको रिटेलिएशन आएगी, तो आप कर पाओगे। अगर आपका आंसर है हाँ, तो कम्युनिकेट करो। अगर आपका आंसर है नहीं, नहीं कर पाऊंगा, अगर ये लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे और ये लोग मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे या फिजिकली ब्लैकमेल करेंगे या कुछ भी ऐसे करेंगे और मेरे को उससे बहुत प्रॉब्लम होगी, ये लोग मेरे से बात करना बंद हो जाएंगे, ये लोग विड्रॉ कर देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, ये सारे डर अगर हैं तो डोंट डू द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट वर्क ऑन दिस थिंग, बिकम केपेबल ऑफ डिफेंडिंग दैट बाउंड्री, और जिस दिन लगे कि हाँ नाउ आई एम सॉलिड फ्रॉम इनसाइड, नाउ आई कैन फेस ऑल दीज थिंग्स, देन गो ahead and set the health boundaries. Is this making sense? Yes, Karma. Lata and Pooja, you were also asking this question. So is this? Yeah, I got your point exactly. मुझे वो समझ में आया है, बट लता का जो कहना था बच्चों के एग्जाम्पल से, दैट अप्लाइज टू माई सिचुएशन, कि वहां पे सेटिंग बाउंड्रीज का पावर, मतलब लाइक इट इज, ठीक है मैं बोल दूंगी कि आपने ऐसे नहीं करना चाहिए था, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, या जो भी कुछ है, पर वो चीज हो गई है। हाँ, तो नहीं, आप अलग अलग तरीके से इसको देख रहे हो। बच्चों के एग्जाम्पल में बच्चों ने कुछ गलत किया है जो आपको गलत लग रहा है, और आपको अगर उनको सिखाना है कि सही क्या होता है, वो एजुकेशन का पार्ट है। वो उनको सही सिखाना कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, वो अलग है। मतलब लाइक वी टू पीपल आर डिमांडिंग एक ही चीज के लिए, हम कलीग्स में, बट उसने ले लिया मेरे से छीन कर, और अगर ये बात लेकर मैं अथॉरिटी के पास जाती हूँ तो उनको ये चाइल्डिश लगेगा, या उनको ये इतना वर्थ नहीं लगेगा कि यार इसके पीछे क्या ये दो लोगों के बीच में सुलह करवाना। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज में आता ही नहीं है ये एग्जाम्पल। हाँ, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। आप जो पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हो, वो पॉइंट ये टॉपिक में फिट नहीं होता, अलग है। हाँ, तो वही इसलिए मैंने अनामिका को पूछा था कि इसमें सेटिंग बाउंड्रीज कैसे होगी, ये सिचुएशन में मैंने समझ सेटिंग बाउंड्रीज से रिलेटेड है ही नहीं। तो ये सेटिंग बाउंड्रीज से रिलेटेड है ही नहीं, तो इसमें सेटिंग बाउंड्रीज का कुछ है ही नहीं। आप सेटिंग बाउंड्रीज कहाँ आता है, वो लाइक आई सेड कि सेटिंग बाउंड्रीज इज अबाउट योर नॉन नेगोशिएबल्स एंड अबाउट योर वैल्यूज। इफ समवन हैज टेकन अवे योर वैल्यूज एंड योर नॉन नेगोशिएबल्स, देन यू फाइट फॉर इट। तो आप यहाँ पे किसी ने क्या छीन लिया, किसी को छीन के दूसरे को दे दिया है। हाउ कैन समवन टेक अवे योर वैल्यू एंड गिव इट टू समबडी एल्स? So Karma, I'll tell you, maybe this is not related to this one, but what I was referring to at my workplace, like my peers are kind of hogging my work. Okay, whatever is assigned to me is hogging my work. When I report this to my manager, he says, "You guys handle it. I don't care. मुझे काम होके मिल रहा है, कौन करता है मुझे मतलब नहीं है."
So every time it is a duplication of things that is happening. Calls, maybe, two people are there for the same thing. So all this is there. If I set the boundaries, then obviously I'll go for everyone, I'll be, in a kind of a bad cop kind of thing. So that is where I was stuck. But yeah, I think हाँ, पर मैं आप दोनों को यही एडवाइस करूंगा कि मे बी आप पहले तो इस प्रॉब्लम को सही देखने के लिए परहैप्स यू यूज द राइट टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आप जब तक टर्मिनोलॉजी सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज बोलते रहोगे तो वो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है और आपको भी कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट करना है। और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि इस सिचुएशन में हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने जैसा कुछ है ही नहीं। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी गलत यूज हो रही है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे शायद कुछ और करने के लिए है और आपको लग रहा है हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने के लिए, तो यहाँ वो नहीं है। Is this I would making like to sense what say I'm saying? something on this part. हाँ, Akarna, shall I? yes, go ahead. Okay. As far as I see the entire situation, आपने एग्जाम्पल लिया 2 बच्चों का, ओके? सो यहाँ जो आपकी एक्चुअल सिचुएशन है मैम, वहां पर आप बच्चों से नहीं बड़ों से डील कर रहे हैं. यू आर डीलिंग विद एडल्ट्स ओवर हेयर. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोई भी सिचुएशन है जिसमें टग ऑफ वॉर है, so the first question you ask to your own self is why is that thing important to you? अगर मान लो एक बैनर भी लगाना है, अगर वो बैनर उसकी टेबल पे ना लग के मेरी टेबल पे लगेगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा? और अगर वो ऐसा नहीं होता कि वो मेरी टेबल से हटा के उसकी टेबल पे लग गया तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? इट इज अबाउट डिफाइनिंग what is triggering your emotions and how your monkey mind is playing with you. यहाँ पे वैल्यू सिस्टम्स तो है ही, लेकिन जो बाउंड्री ड्रॉ करनी है वो पहले आपको अपने खुद के साथ ड्रॉ करनी है कि क्यों वो चीजें आपको और किस हद तक वो चीजें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं. क्योंकि अगर आपने अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ लिया कि कैसे आपका दिमाग आपको ट्रिगर करता है, क्या क्या वो आपको महसूस कराता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, ओवरवेल्म होता है, एंजाइटी होती है, या आपको ये महसूस होता है कि दूसरे मेरी तरफ देखते नहीं, वो बहुत बुरे हैं, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते. तो जिस दिन आपने अपने इमोशनल चीजों को समझ लिया, अपने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को समझ लिया, उस दिन आप ये समझेंगे कि वो चीज आपके लिए वाकई में इम्पोर्टेंट है और इट इज जस्ट एन ईगो हैसल विच इज योर माइंड इज प्लेइंग विथ यू. एंड यू गॉट टू एंड बिफोर one minute, Agarma, just 1 minute. And before you define your boundaries, you got to know your own worthiness, because that will strengthen your application of that boundary. अगर मुझे ये पता है कि मेरे काम में दम है और मेरी एक बाउंड्री है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है अपनी बाउंड्री को मेंटेन करना, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता है, मुझे उसकी वर्थ पता है. लेकिन अगर मैं अंदर से ये समझती हूँ कि यार मेरे जैसे तो बहुत है मार्केट में और कोई और कर लेगा, तो मैं अपनी बाउंड्री खुद ही ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि वहां जो लो कॉन्फिडेंस है, जो अनवर्दीनेस है, वो मेरे खुद के अंदर से आ रही है. एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग मी ब्रेक माई ओन बाउंड्रीज. ओके, Nobody मैं is ये pushing बोलूंगा me from कि outside. हाँ, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा टू लता एज वेल कि यहाँ पे ना बाउंड्री जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना वो गलत है. दैट इज व्हाट आई वुड फर्स्ट हाईलाइट कि ये सिनारियो में बाउंड्री गलत है. सो ये ऐसा मान के चलो कि आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज है और किसी चोर ने वो चीज चुरा ली है और वो चुरा के चला गया है, तो यहाँ पे हम बाउंड्री सेटिंग की बातें नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हम बात करेंगे एस्केलेशन की, या इसको हमें अब एड्रेस कैसे करना है. तो यहाँ पे बाउंड्री सेटिंग की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे एक चीज है जो आपको चाहिए और किसी और को भी चाहिए. तो 2 लोग एक चीज के लिए compete कर रहे हैं और 2 लोगों में एक कॉन्फ्लिक्ट है.
तो आपसे अगर वो चीज छीन के किसी और को दी जा रही है तो यहाँ पे कुछ तो फेवरेटिज्म चल रही है या कुछ तो चल रहा है, तो आपको उससे दिक्कत हो रही है। तो दिस इज मोर अबाउट एस्केलेटिंग, वॉइसिंग योर ओपिनियन एंड सेइंग कि ये आपको क्यों बॉदर कर रहा है। अगर वो वॉइस करने में आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप उसको बता नहीं पा रहे हो, तो वो चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि आप बोल क्यों नहीं पा रहे हो। आपको ये चीज अगर बक करी है और ये चीज आपको चाहिए थी, तो आप इसको बता क्यों नहीं पाए। क्या क्या रोक रहा है आपको वो चीज बताने से दूसरे को। तो दैट कुड बी many fears and insecurities that could be there. So this is more around fears and insecurities rather than boundary set. Yeah. Exactly. हाँ, तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि पहले सही टर्मिनोलॉजी यूज करोगे ना, तो क्या होगा कि दवाई सही खाओगे, क्योंकि गलत टर्मिनोलॉजी यूज करोगे, गलत दवाई खाते रहोगे और फिर वो वर्क नहीं करेगा, तो आपको लगेगा ये तो करके देख लिया, ये भी करके, पर उसको करके देखने का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे। तो ये सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज का इशू ही नहीं है। दिस इज एन इशू ऑफ someone's own fear and insecurity which they need to become aware of कि वो क्या है जो मुझे रोक रहा है इस चीज को वॉइस करने के लिए। टेकिंग स्टैंड यहाँ पे हो सकता है। टेकिंग योर स्टैंड, एग्जैक्टली टेकिंग योर स्टैंड। और वो स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, तो टेकिंग योर स्टैंड इज द सॉल्यूशन, वो तो ऑब्वियस है। The other thing which is hidden here, which is not so obvious, is why I am not able to take the stand. मुझे पता है कि I need to take the stand. तो what is it that is stopping me from taking that stand? वो देखने की जरूरत है ना। तो वो तो कोई फियर और इनसिक्योरिटी से आ रहा है, कुछ तो है जो आपको लग रहा है कि इसका कोई ये कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, वो कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा। सेटिंग हेल्दी बाउंड्री में वो नहीं होता है। सेटिंग हेल्दी बाउंड्री में यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, यू नो कि ये करने से दूसरे को दिक्कत होगी। जिन लोगों का काम अभी तक बन रहा था उनका काम बनना बंद हो जाएगा, वो लोग ये दिक्कत करेंगे वो। तो यहाँ पे फियर और इनसिक्योरिटी को आपने पहले ही एड्रेस कर लिया है। दैट इज पार्ट ऑफ द डिफेंडिंग पार्ट जो आई एम टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे मुझे पता है, पहले से ही पता है कि मेरी ये इनसिक्योरिटी है, मेरा ये फियर है जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उसको पहले से ही कर लिया। तो जब सेटिंग हेल्दी बाउंड्री हम करेंगे तो हम फियर और इनसिक्योरिटी की स्टेट से नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी वॉइस नहीं कर पा रहा हूँ और उस चीज को मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे आगे कुछ गलत हो रहा है और मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मैं उस गलत को वॉइस नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका ये कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा मेरे ऊपर, ये चीज होगी और मुझे वो कॉन्सिक्वेंस भी नहीं झेलना है। तो कहीं ना कहीं मैं फंस गया हूँ इस सिचुएशन में जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि चित भी मेरी है, पट भी मेरी, कि ये बात भी बन जाए और वो कॉन्सिक्वेंस भी ना आए। तो अब मैं एक सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंस भी मेरे ऊपर ना आए और ये चीज भी हो जाए। वो एग्जिस्ट नहीं करता, देयर इज नो सच थिंग। तो फियर और इनसिक्योरिटी को तो अगर मुझे इफ आई नीड टू स्टैंड अप फॉर समथिंग जो कुछ गलत है, तो फिर आई नीड टू बी रेडी टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो। तो अगर इफ आई एम नॉट रेडी टू फेस, आई एम नॉट आस्किंग एनी ऑफ यू टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हैव द रेडीनेस। और अगर वो रेडीनेस नहीं है तो डोंट डू इट, देन जस्ट बी क्वाइट, देन जस्ट लेट व्हाटएवर इज हैपनिंग लेट इट हैपन। Yeah. तो हाँ Yes. हाँ Yeah, you exactly portrayed the situation as it is. या मेरा फियर और इनसिक्योरिटी ये था कि इन द फियर ऑफ लुकिंग गुड, कि मैं ये बोल दूंगी जाकर इसने ऐसे किया है तो आई लुक चाइल्डिश, आई लुक इमेच्योर, एंड सिंस दे आर बायस्ड, तो ऐसे हो सकता है कि उनको लगे ये कमजोर कड़ी है, इसको पहले मतलब साइड ट्रैक करके निकालने की कोशिश में, देन आई मे लूज द जॉब। ये इनसिक्योरिटी के कारण जो एग्जैक्टली होते गया मैं उसको सहन करती गई।
एग्जैक्टली तो क्योंकि वही उसका है कुछ कि तो ये कॉन्सिक्वेंस तो होने ही वाला था। अगर मैं होने ही दूसरे का वाला है। बोलने जाऊंगी तो बॉस को पहले तो ये लगेगा कि वाह इसकी क्यों नहीं बन रही है या यही क्यों आ रही है। हो सकता है कि यू नेवर नो कि सामने वाला क्या सोचता है हम जब कंप्लेंट लेकर हाँ जाते हैं। तो हाँ कुछ भी हो सकता है, तो हाँ वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के उसमें नहीं थी मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो तो यही होता है कि पहले तो हमें वो कॉन्सिक्वेंस का फियर होता है कि ये कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा, तो ये आई डोंट वांट दिस कॉन्सिक्वेंस, सो बेसिकली I want the consequence in my favor, but at the same time I also want to voice it. तो मैं बोल रहा हूँ कि चित भी मेरी पट भी मेरी, मुझे कॉन्सिक्वेंस भी नहीं चाहिए और मुझको ये चीज वॉइस भी करनी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तो इसको अगर दूसरी तरह से देखें कि अगर वो दूसरा इंसान इतना मैच्योर हो कि वो आपके ऊपर वो कॉन्सिक्वेंस ना आए, तो फिर ये सिचुएशन तो won't be there in first place itself. The other person would be mature enough already to see this. The whole point is the other person is not that mature enough to see this, and that is why you need to take this step. तो चिकन एंड एग स्टोरी हो जाती है। या हम वो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से जो उनमें है ही नहीं। एग्जैक्टली। तो फिर द सॉल्यूशन इज आइदर आपको जो लग रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि दे विल थिंक कि आई एम चाइल्डिश, दे विल थिंक आई एम दिस एंड दैट, देन वर्क ऑन दैट, वर्क ऑन योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। तो यू कैन लर्न टू एक्सप्रेस इट इन अ वे विच डजंट अपीयर चाइल्डिश। तो हम अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करके रुक सकते हैं, या हम अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करके स्टार्ट कर सकते हैं वहां से। ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है। जब हमें ये क्लियर हो गया है कि वो हमको चाइल्डिश सोच सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा टू फिगर आउट कि हाउ आई कैन पुट माई पॉइंट नाउ दैट आई डोंट अपीयर चाइल्डिश। आई वुडंट देन स्टॉप, या बिकॉज स्टॉपिंग इज क्रिएटिंग मोर एंजाइटी इन मी। फिर तो होता रहेगा, फिर एक बार होगा, दूसरी बार होगा। पहली बार हुआ तो शायद मेरे को जितनी प्रॉब्लम हुई, दूसरी बार होगा तो मुझे तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने अपने आप को रोक के रखा हुआ या है। तो then what other choice do I have instead of like working on my own fear and insecurity कि जो मुझे जो चीज से डर लग रहा है उसी को ही तो सॉल्व करना है फिर। तो I need to learn how I can put my point across that I don't appear childish to the other ट्रू person, that they ट्रू। get my point. Great. Great. So does that answer your question, Pooja? Yeah, a lot Yeah. of things got cleared. Wonderful. And you're also going to take the healing journey, right? So Yeah, I hope you will be able to go to the roots of this thing and find more answers over there. That yeah, अभी yeah. तो हमने इसको बिल्कुल एक ही एंगल से देखा है, but you will be able to see this thing from many different angles over there. Yeah. Yeah, yeah, wonderful. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? ठीक है, ठीक है. Nothing else comes to my mind. This same thing was there in my head as well, that we needed to come to this point that um, um, we need to look into this thing, that what is hidden beneath those. First of all, defining what kind of a fear that we are actually facing, which is actually happening in our current life, and then going deeper into where that fear is coming from. Um, what exactly are the things which I'm fearful of, and resolving those things at the root level. So that's that.
And we will continue this conversation further in the next open discussions. The next one is happening on 9th of April. So we will wrap up today's call and then we'll see you guys soon on 9th. Thank you so much for joining, everyone. Have a great evening. Bye-bye. Thank you. Thanks everyone. Thank Good you, night. everybody.